Hello everyone. So let's start the next topic of our theme 4. So our topic, as you all are knowing about that, we were doing theme number 4, thinkers, beliefs and the buildings. In this was the time period of 600 BC to 600 CE. As always I am telling you, clear. So time period, so the time period of 600 BC to 600 CE, in this theme we were doing about that how the thinkers, who were the thinkers and what were their beliefs, and the buildings also, like the buildings also we are studying in this chapter, basically in this theme. So in the previous videos we studied about that how the buildings survive, or the philosophers like that Gautam Buddhas, Mahavir Swamis. Then after that we studied about the stupas also, clear, like what was the reason behind their survival and how they survived, and who played the main role in their survival, and all these things we studied in the previous videos, clear. Now in this video I am going to tell you about that the sculpture is basically about that like we see in the stupa. In that stupa there were the gateways, and there were the carving on the gateways, they were carving on the stones and all that. The sculpture is basically all that carvings that on the walls, on the gateways, and on the different areas of the stupas, or maybe somewhere else also, clear. So what the sculpture saying, how the historian trying to understand the sculpture, and that and linked the structure with the text also. So basically what we are going to do today in this chapter is that the sculptures, that stories that depict on the sculptures, how the historians understand all these sculptures. Is there a is there any picture of the human being, or only the symbols of the worships also there, how they connect these symbols with that, okay, these basically the symbol is of that Gautam Buddha or maybe someone else also, clear. And that popular perception of that time, the previous who were doing or who were making this sculpture, what were the popular tradition of that time when they made these sculptures and all these things, clear. So basically in this video we are going to do related everything about the sculptures, clear. And the next point is that in this video the next point is, after that the 10th point, if we see that in this the 10th boy, the new religion traditions, like the time period of the 600 BC 600 CE, we heard about that Jainism and Buddhism was there. So what was the new religion, new tradition was there in that time? So basically now I'm going to tell you about the Hinayana and the Mahayana, as I told in the previous video also, okay. And the Puranic tradition also, like Shaivism, Vaishnavism at this time period, and these type of things. And at the last of this video I am going to tell you about that how the things, how all these things were depicted. Can we see everything, like can historian found everything with all these pictures and all these things, or something missing also, and how much difficulty they faced in depicting in all these things. So basically this is the whole video, and this is the last video of this theme. Let's start with the sculptures. 9.1, stories in the stones. So stories in the stones basically means like in on the stone one scene depict, clear. Like ever you, if you seen about that story, wanderers, those who tell the stories and all that, depict the stories in the paintings and all that. Like कोई पेंटिंग है, पेंटिंग कुछ ना कुछ स्टोरी डिपिक्ट करती है, दिस टाइप ऑफ थिंग आपने हमेशा देखा होगा, क्लियर. तो एज वी हैव सीन द वेंडर, स्टोरी टेलर्स हैव द स्क्रॉल ऑफ द क्लोथ. स्क्रॉल ऑफ क्लोथ रोल करके होता है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड की तरह रोल खोल दो उसको और टांग दो, और स्क्रॉल ऑफ क्लोथ या पेपर के ऊपर जो पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई है, पेंटिंग की गई है, उस स्टोरी से उस एक पेंटिंग में वी कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी लाइक दैट. So just like the stupas, just like the sculptures also seem to depict a rural scenes with the huts and trees. तो stupas में भी ये सब scenes जो हैं, trees, huts and so many sculptures में पूरे scenes देखे गए, depicted of scenes देखे गए हैं. However, historians carefully studies the sculptures in Sachi. At Sachi, a part of gateway of Sachi depicts. Now,
इन सीन्स के अंदर सांची का जो गेटवे था, दे सीन द पिक्चर इन दैट पिक्चर उन्होंने कैसे इसको फाइंड आउट किया, दे डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दिया, गिव एवरीथिंग टू ब्राह्मण एंड विद हिज एंड हिज फैमिली वाइफ, मतलब उसकी पूरी फैमिली के साथ जो है वो कहाँ चले गए, went to the live in जंगल, ठीक है। एंड दिस हाउ द हिस्टोरियंस ट्राई टू, ऐसे ही उनको पता चल गया हाउ द हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद द वसंतरा जटाका एंड जटाका। आई एम ऑलवेज टेलिंग द ऑर्डिनरी पीपल स्टोरीज जो जटाकाज में मिलती थी, क्लियर। सो स्कल्पचर्स को, so this is the basic thing that to understand the meaning of the sculpture they have to compare it with the textual tradition। किसी को ऐसे ही देखते ही थोड़ी समझ जाओगे, हर एक का अपना अपना अंदाज़ा होगा। लाइक हम कोई स्टोरी अगर देखते भी हैं तो एवरीवन हैज़ देयर ओन परसेप्शंस एंड ओन स्टोरीज एंड ऑल दैट, हाउ वी विल कंपेयर, वेरी डिफिकल्ट। सो इन सब चीज़ों को जो है इन्होंने जो है कंपेयर करने के लिए टेक्सचुअल एविडेंसेस को जो है स्टार्ट किया था। नाउ टेक्सचुअल एविडेंसेस से स्टार्ट किए। आफ्टर दैट अ सिंबल ऑफ द वर्शिप, वेट फॉर अ व्हाइल, अ सिंबल ऑफ वर्शिप एंड दैट सिंबल ऑफ वर्शिप लाइक गौतम बुद्धा के पिक्चर्स हैं वहाँ पे। लाइक इफ़ यू सी अबाउट द स्कल्पचर्स ऑफ द सांची, क्या वहाँ पे गौतम बुद्धा के पिक्चर्स हैं, क्या वहाँ पे हमें गौतम बुद्धा, नो, उनके सिंबल्स ऑफ वर्शिप्स हमें वहाँ पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक द ट्री, जहाँ पे उन्होंने उनको जो है उन्होंने मेडिटेशन किया, ठीक है, या फिर वो जो व्हील, ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ सिंबल वी फाउंड इट हियर। और ये सब चीज़ें जो हैं हमें किससे मदद मिली इन सब चीज़ों को समझने के लिए, हैगियोग्राफी। और हैगियोग्राफी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें गौतम बुद्धा, मतलब जिसमें किसी भी लाइक सेंट की पूरी जो है एक तरह से बायोग्राफी लिखी होती है। हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड बुद्धा स्कल्पचर विद द hagiographies. Hagiographies tells about the Buddha get enlightenment under the tree, Bodh Gaya. In sculptures, Buddha is shown the symbol despite of the human form. तो यहाँ सिम्बल्स में दिखाए गए हैं स्कल्पचर्स में, rather than ऐसा नहीं दिखाया गया है लाइक द ट्री इज़ देयर एंड द गौतम बुद्धा इज़ डूइंग दैट मेडिटेशन देयर, नहीं, ऐसा नहीं है। सिम्बल्स हैं, सिम्बल लाइक बोध गया के अंदर सिम्बल, बोध गया का सिम्बल जो किससे पता चल रहा है, ट्री से, वेयर he get his enlightenment. Second, like this tree, empty seat meditation जहाँ पे वो किया करते थे वो जगह, ठीक है। सुपर रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बाणम, जहाँ पे उनको क्या मिला, जो स्तूपा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे उनको क्या मिला, महापरिनिब्बाणम मिला, मतलब कि जहाँ पे उनको मोक्ष मिला। आफ्टर सिंबल वॉज अनदर सिंबल द व्हील दैट स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन एट द सारनाथ, दैट वॉज द नेक्स्ट। सो बोध गया, ठीक है, एंड ट्री वेयर ही गेट हिज दैट, वेयर ही वॉज डूइंग हिज दैट मेडिटेशन। आफ्टर दैट द फर्स्ट सरमॉन एट द सारनाथ, दैट द सिंबल सारनाथ का क्या है, जब पहला लेक्चर दिया था वो व्हील है वहाँ पे। सो दीज स्कल्पचर्स कैनॉट अंडरस्टैंड stood literally but symbolize an event in the life of the Buddha. So सिम्बल से समझाए गए हैं ये स्कल्पचर्स जो हैं, वहाँ पे स्कल्पचर्स पे जो है सिम्बल्स बनाए गए हैं, लाइक ट्री का, एम्प्टी सीट का और दैट व्हील के सिम्बल्स बनाए गए हैं। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिम्बल हिस्टोरियन हैज़ टू अंडरस्टैंड द अबाउट द आर्टिशंस अबाउट। अब ये सब सिम्बल्स को समझने के लिए अचानक देखते ही सिम्बल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एट दैट टाइम आर्टिशियंस को, उस टाइम के आर्टिशियंस और उनके ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश की है कि आर्टिशियन उस टाइम पे बनाने वाले लोगों ने स्कल्पचर्स को क्या सोचा होगा, व्हाट वर द ट्रेडिशन एट दैट टाइम। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि ये सारे सिम्बल्स या स्कल्पचर को बनाते टाइम जो है आर्टिशियंस ने व्हाट दे थिंक अबाउट दैट, व्हाट वर देयर ट्रेडिशन एट दैट टाइम, क्लियर। नाउ सो इसी से ही लिंक करते हुए नेक्स्ट है पॉपुलर ट्रेडिशन, कि आर्टिशियंस उस टाइम पे क्या सोचते होंगे, क्या ट्रेडिशन होगा उस टाइम पे, जिसमें सबसे पहले जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे शैला भंजिका पढ़ेंगे, क्लियर। इसमें जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द शैला भंजिका। आफ्टर दैट अनदर थिंग दैट इज़ माया एंड गजलक्ष्मी, क्लियर। देन एलिफेंट, ठीक है, जटाका टेल से। देन आफ्टर दैट नाउ दिस, यस, सर्पेंट स्कल्पचर, serpent, clear. So these were the things that we are going to do in this. Now let's start it. So what were the popular tradition at that time? So मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने कहा स्कल्पचर्स जो है, इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड आउट द स्कल्पचर्स, इसमें स्टोरीज डिपिक्ट की गई थी एंड ऑल दैट, सीन्स वगैरह हुआ करते थे। सो ये सीन्स को डिपिक्ट करने के लिए जो है
टेक्सचुअल ट्रेडिशन को पढ़ना होता था। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट कि ह्यूमन बुद्धा का कोई ह्यूमन फॉर्म वहाँ पे नहीं है, ह्यूमन फॉर्म्स की जगह उनके सिंबल्स दिखाए गए हैं, और ये सिंबल्स भी उन्होंने जो है हैगियोग्राफी से समझने की कोशिश की है। और उसके अलावा भी इन सब सिंबल्स लाइक इतने सारे जो भी स्कल्पचर्स वहाँ पे जो हैं, वो जो सिंबल्स दिखाए गए हैं, वो सिंबल्स को समझने के लिए उन्हें आर्टिस्ट को, उस टाइम के आर्टिस्ट को और उनकी ट्रेडिशंस को समझने की ज़रूरत थी। जिसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द शैला भंजी का। लाइक एक गेटवे के ऊपर एक गेटवे है, उस गेटवे के ऊपर एक वुमेन का पिक्चर है, जो वुमेन उस गेटवे पर जो है जिसे उन ट्रीज़ के ऊपर झूल रही हैं, लाइक दैट। ठीक है, एक वुमेन। सो उसको देख के द इनिशियली जो स्कॉलर श्योर ही नहीं थे कि वो क्यों है, मतलब बुद्धा के या बुद्धिज्म रेनिसेशन से इससे क्या लिंक्ड है, दे वर नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, बट आफ्टर दैट जब उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, देन दे गेट द श्योरिटी। अदर स्ट्रक्चर्स एट द सांची वर ऑल नॉट डायरेक्टली लिंक टू द बुद्धिस्ट ट्रीज, बाकी सब बुद्धिस्ट आइडियाज से लिंक्ड नहीं थे। लाइक हमने इसे प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, लाइक ट्री एंड दैट व्हील एंड दैट एम्प्टी सीट, वो सब बुद्धिस्ट आइडियाज से कनेक्टेड थे, साफ साफ समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी बनाए गए थे वहाँ पे, लाइक स्तूपास पे, गेटवेज, और ड्राइंग्स और स्कल्पचर्स भी ऐसे थे जो लिंक्ड नहीं थे बुद्धा से। फॉर एग्जाम्पल, जिसके सबसे बड़े एक ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन अ ट्री। सो उसका कहीं भी किसी तरीके से कोई लिंक हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आ रहा था। सो द इनिशियल स्टेजेस स्कॉलर्स वर नॉट श्योर अबाउट द इमेज, इट सीम्स नो कनेक्शन विद द बुद्धिज्म एंड द रेनेंसिएशन, कोई भी कनेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनका किस तरीके से बुद्धिस्ट आइडियाज से कनेक्शन है। बट आफ्टर एग्जामिन द अदर लिटरेरी टेक्स्ट, हैगियोग्राफी के अलावा, हैगियोग्राफी बुद्धिस्ट आइडियाज लिटरेरी टेक्स्ट, उसके अलावा जब इन्होंने अदर संस्कृत लिटरेचर्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे एक डिपिक्शन था शैला भंजी का, एक लेडी की। ठीक है, और ये शैला भंजी का क्या है, इनके शैला भंजी का बेसिकली उसमें क्या लिखा था, शैला भंजी का वॉज अ वुमन जिनके ये माना जाया करता था, उस टाइम के पॉपुलर ट्रेडिशन था कि उनके टच करते ही पेड़ों के ऊपर फूल एंड द बियर्स एंड द फ्रूट्स, फूल एंड फल वगैरह उसमें आने लगा करते थे। दिस वर द बिलीव्स। सो मे बी शैला भंजी का स्कल्पचर ऑन द गेटवे ओनली फॉर द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा, दैट इज़ वाई इट वॉज यूज इन द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा, क्योंकि ये ऑस्पिशियस सिंबल है, फेवरेबल सिंबल था, और शैला भंजी का शुभ है, तो मे बी इसीलिए जो है इन्होंने बना दिया कि इनके टच करने से हर जगह मतलब सुख शांति, फल फूल एंड ऑल दैट प्राप्त होते हैं। तो दिस कैन डेकोरेटेड लाइक दैट ऑल्सो। क्लियर। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सारी चीज़ें उनसे ही कनेक्टेड हो, उनसे लिंक्ड कर दी होगी। ठीक है, सो इट सजेस्ट दैट मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म एंड इट विद देयर आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। क्लियर। सो दोज हु लाइक जिन्होंने जो है बुद्धिज्म, दोज हु अडॉप्टेड द बुद्धिज्म आफ्टरवर्ड्स, दैट डजंट मीन दे लाइक उन्होंने सारी चीज़ें पुराने आइडियाज़ प्रैक्टिस छोड़ दी होंगे, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट आइडियाज़ प्रैक्टिस एंड बिलीव्स ऑल्सो, दैट्स वाई जो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्तूपास पे जो है पाई गई हैं, जस्ट लाइक द शैला भंजी का। क्लियर। सो प्री बुद्धिस्ट को भी उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था और बुद्धिस्ट कल्चर को भी मे बी दे अडॉप्टेड। ठीक है, तो उनके कुछ अपने बिलीव्स और आइडियाज़ होंगे आर्टिस्ट के भी, जो उन्होंने जो है यहाँ पे डिपिक्ट हुए हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वन, देयर आर अदर इमेजेस ऑल्सो हेयर, यहाँ पे एलिफेंट की, हॉर्सेस की, मोंकी, कैटल्स लाइक द ऑक्सन एंड लाइक काउ, इनके जो है बहुत सारे इमेजेस हैं। अब इनको कहाँ से मतलब पता लगाया है, जटाका टेक्स्ट, कॉमन पीपल की स्टोरीज है, कंटेन द स्टोरीज डिपिक्ट एट द सांची, मैनी ऑफ द एनिमल्स कार्व टू क्रिएट द लाइफ सीन्स टू ड्रॉ द व्यूअर्स अटेंशन। तो हो सकता है इसीलिए व्यूअर्स के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए इन्होंने जो है लाइव एनिमल्स को भी ड्रॉ कर दिया होगा कि सीन में डिपिक्ट करने के लिए, लाइव सीन्स को बिल्कुल ऐसे लाइव लगने के लिए। क्लियर। सो एनिमल्स वर द सिम्बल्स ऑफ द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, लाइक एनिमल्स को भी सिम्बल्स की तरह इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट उन्होंने जो है स्कल्प्ट उस पर किया, तो वो स्ट्रेंथ और विजडम, एलिफेंट बेसिकली किसका प्रतीक है, स्ट्रेंथ और विजडम का। तो हो सकता है इसी तरीके से स्ट्रेंथ और विजडम जो है इन्होंने जो है यहाँ पे जो है ये लाइक शैला भंजी का, लाइक दीज वर द गुड फॉर्च्यून्स, दीज वर द क्लियर, दीज वर द गुड थिंग्स, ये इनका लाइक इन्होंने लक की तरह ही इन्होंने इन चीज़ों को जो है ऐड ऑन कर दिया होगा वहाँ पे कि अच्छी शुभ चीज़ों को मान के। क्लियर। नाउ
अनदर मोटिव ऑफ अ वुमन सराउंडेड बाय द लोटस। अब जो तीसरी चीज़ जो मिली है वो है लाइक इफ़ आपने कभी लक्ष्मी जी की, इफ़ यू सीन द दैट द पिक्चर ऑफ द लक्ष्मी जी बीच में कमल के फूल पे बैठी हैं, दोनों तरफ से हाथी हैं जो उन पे जो अभिषेक पानी से जो अभिषेक कर रहे हैं, लाइक दैट, इस तरीके का एक पिक्चर था। अनदर मोटिव ऑफ वुमन सराउंडेड द लोटस एलिफेंट सीम टू स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर, अभिषेक कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ने, कुछ हिस्टोरियन ने इनको माया बताया कि गौतम बुद्धा की मदर होंगी। अदर डिपिक्ट दैट के गजलक्ष्मी है, goddess of the good fortune, again the same thing, and also associated with the elephants. Maybe the devotees saw this sculpture as both, हो सकता है डिवोटीज दोनों के हिसाब से सोच रहे हूँ कि गजलक्ष्मी ही गौतम बुद्धा की माँ हूँ, ठीक है ना, माया हूँ, लाइक दैट। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे डिपिक्टेड। तो इनके पॉपुलर परसेप्शंस थे, उस टाइम के पॉपुलर परसेप्शंस होंगे, पॉपुलर ट्रेडिशंस होंगे, जो इन्होंने जो है स्कल्पचर्स में, जो जिनकी इन्होंने स्कल्पचर्स बना दिए होंगे, लाइक शैला भंजिका का स्कल्पचर बना दिया होगा, एनिमल्स का स्कल्पचर बना दिया होगा, गजलक्ष्मी का स्कल्पचर बना दिया होगा फॉर द गुड फॉर्च्यून। क्लियर नाउ। सो सरपेंट, अब सरपेंट के कुछ पिक्चर्स जो स्कल्पचर्स जो हैं, सॉरी पिक्चर्स नहीं, सरपेंट के स्कल्पचर्स जो हैं बहुत से पिलर्स के ऊपर वहाँ पे थे सरपेंट की। सो देयर वॉज अ which is surrounded by the worship at the Sanchi, considered by one of the earliest modern art historians। अब इन्होंने जो है आर्ट हिस्टोरियंस थे, मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन है उस टाइम के, जेम्स फर्ग्यूसन, ही वॉज नॉट फैमिलियर विद, उनको नहीं पता था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और उसके बारे में, तो उन्होंने सांची को डिपिक्ट किया कि सांची कंक्लूड सांची एज अ सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सर्पेंट वर्शिप, कि सांपों की जहाँ पे पूजा होती हो, एक ट्री का सेंटर जिसके आसपास सांप ही सांप है, वहाँ पे उनकी पूजा होती हो। तो इन्होंने इस तरीके से सांची को डिपिक्ट किया, बिकॉज ही वर नॉट नोइंग अबाउट दैट बुद्धाज ट्रेडिशन। सो बेसिकली व्हाट वी डिड इन द स्कल्पचर इज दैट, स्कल्पचर को देख के, लाइक टू आफ्टर सीइंग द स्कल्पचर, व्हाट द हिस्टोरियन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ दे अंडरस्टूड, they understood with the help of the textual tradition, and there was no human forms of the Gautam Buddha, on the symbols were there that they can easily linked with the hagiographies of the Gautam Buddha, but there were so many other things were all there, but that time the things of the at that times popular perception and traditions were there, so that were also the sculptures of that types of the things were there, like the शैला भंजिकास, because उस टाइम पे ये शुभ मानते होंगे, गुड फॉर्च्यून मानते होंगे, तो इन्होंने उसको भी सजाने के लिए डेकोरेशन के तौर पे इनको भी बना दिया होगा। क्लियर। शैला भंजिका, लाइक जटाका टेल्स, इनको एनिमल्स जो लाइफ सीन डिपिक्ट करने के लिए एनिमल्स बना दिए होंगे, गजलक्ष्मी बिकॉज ऑफ द गुड फॉर्च्यून, लाइक दैट, ठीक है। और उन्हीं में से एक थे जेम्स फर्ग्यूसन, जिन्होंने जो है जो गौतम बुद्धा के ट्रेडिशंस से तो फैमिलियर थे नहीं, तो इन्होंने इन सबको सांची को क्या बताया कि ये बिल्कुल ये इन्होंने कंक्लूड किया सांची क्या है, जहाँ पे पेड़ है, सेंटर ऑफ ट्री का जो मेन सेंटर किस पे बना है, सेंटर ऑफ ट्री, और जिसके आसपास जो क्या है, सरपेंट वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, और सांपों की पूजा के लिए डिपिक्ट किया इन्होंने। क्लियर। सो दिस वॉज द sculpture. Now let's start about the new religious tradition of that time. So at that time, this is that basically first Mahayana and Hinayana, सेकेंड पुरानिक ट्रेडिशन, एंड थर्ड के उस टाइम पे किस तरीके से मंदिर वगैरह बने थे, ठीक है। सो ये है हमारा नया रिलीजियस ट्रेडिशन उस टाइम पे क्या था। सो नए रिलीजियस ट्रेडिशन की बात करें तो गौतम बुद्धा जो थे, पहले मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि गौतम बुद्धा जो है उनको निर्वाणा अपने मतलब सेल्फ एफर्ट्स पे जो है वो बिलीव किया करते थे कि खुद हमें अपने दुखों का निवारण खुद करना है, और ये सब हम अपने सेल्फ एफर्ट से कर सकते हैं, खुद अपनी मेडिटेशन से कर सकते हैं, दूसरा कोई उसमें रोल नहीं है, और हम अपना निभाना या निर्वाणा की प्राप्ति जो है, मोक्ष की प्राप्ति खुद अपनी मेहनत से कर सकते हैं। दैट वाज द थिंग। क्लियर। सो एविडेंसेस फाउंड ऑफ द चेंजेस इन द बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस बाय फर्स्ट CE, कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ में चेंजेस होने लगे, ये एविडेंस हमें कब मिले, फर्स्ट CE, ठीक है। सो इन द अर्ली बुद्धिस्ट, अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग की बात करते हैं तो किसके ऊपर एम्फेसाइज, किसके ऊपर, सेल्फ एफर्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया निबाना के ऊपर फोकस किया करते थे, और इनको बाद में नाम दिया गया, ये नाम किसने दिया, हीनयाना एंड लेसर व्हीकल, महायाना ने, ठीक है। ये ओल्ड ट्रेडिशन वालों को नाम दिया गया, लेसर व्हीकल और हीनयाना, ये नाम बाद में। तो स्टार्टिंग में बुद्धिस्ट टीचिंग यही हुआ करती थी। फॉलोवर्स ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस जो है वर कॉल्ड द देमसेल्फ तेरावादीन्स, और इनको जो है वो अपने आप को तेरावादीन्स बोलते थे, पुराने ट्रेडिशंस को, हीनयाना को अडॉप्ट करते थे। तो बुद्धा ऑल्सो रिकॉर्डेड एज द ह्यूमन बींग
who attain enlightenment and nibbana with his own efforts. तो gradually the ideas change. So बुद्धास के टाइम पे जब तक बुद्धा थे तो ये सब चला कि अपने खुद के एफर्ट से हमें निभाना मिल सकता है, दिस आर ऑन एफर्ट्स, ठीक है. बट आफ्टर द आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धाज और आफ्टर 1 CE इट स्टार्ट चेंजिंग, द आइडिया स्टार्ट चेंजिंग. नाउ अब आइडिया था सेवियर का, ध्यान से सुनना, दिस नाउ द आइडिया ऑफ द सेवियर का, ठीक है, बचाने वाले का. लेटर ऑन द आइडिया ऑफ सेवियर एमर्ज्ड, लाइक सेवियर मीन्स टू सेव और बाय whom people can attain nibbana to ensure the salve to worship. मतलब जिसकी पूजा करके या जिसकी वजह से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है. लाइक चेंज हो गया खुद का एफर्ट्स के थ्रू नहीं. लाइक ये कौन सा टाइम पीरियड था कि ये मतलब किसी सेवियर की, मतलब ऐसा कोई हमें बचाने वाला सेवियर आएगा जो हमें बचाएगा और जिसकी वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी. सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग. अब ये कैसे होगा, ये चेंज ऐसे हुआ कि उन्होंने जो है गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा और इसी तरीके से एक बोधिसत्ता जो हैं उनको जो है इन लोगों ने पूजना से पहले. गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्धा एक खुद ही एक ह्यूमन बीइंग थे, उनको कभी कोई भगवान की तरह पूजा नहीं जाया करता था. लेकिन आफ्टर 1 CE उनको जो है भगवान की तरह उनकी मूर्तियाँ बनाई, उनको भगवान की तरह पूजा जाने लगा, ठीक है. लाइक सो सेवियर ये परसेप्शन आया इसके अंदर, मीन्स नॉट बाय द सेल्फ एफर्ट्स, not by the self efforts, simultaneously the concept of the bodhisattva also develop. Now the what is bodhisattva? bodhisattva वो होते हैं जो खुद अपनी मेहनत से निर्वाणा तक पहुंच जाते हैं. लाइक हु आर एबल टू रीच द निर्वाणा, अपने गुड एफर्ट से, अपने मतलब करुणा भाव से या अपनी मेहनत से निर्वाणा तक पहुंचे, लेकिन निर्वाणा लेते नहीं हैं. नॉट गेट निर्वाणा बट टू हेल्प द अदर्स. और वो क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो अपने जो उनके पास जो पार जो मिलती है, जो एनलाइटमेंट जो उनको मिलती है, उससे क्या है वो दूसरों की मदद किया करते हैं, ठीक है ना, किया करते थे. बोधिसत्तास वर दोज हु वर एबल टू रीच निर्वाणा बट डिले डूइंग सो थ्रू द कंपैशन फॉर सफरिंग ऑफ द फॉल. पर उसको डिले कर देते हैं, निर्वाणा उस वक्त नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको क्या है, कंपैशन है, उनके जज्बा है किसकी, जो दुखियारे लोग हैं उनकी मदद करने का, ठीक है. हु एक्यूमुलेट मेरिट थ्रू देयर एफर्ट, जो अपनी अच्छाइयों से जिनको ये ताकत हासिल होती है, बट यूज दिस नॉट, और लेकिन उस मेरिट को या फिर उस एनलाइटमेंट को वो निर्वाणा के लिए नहीं यूज़ करते हैं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए. सो नाउ द 2 थिंग्स वर देयर. सो इस वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बुद्धा बोधिसत्तास became important और इसको महायाना और ग्रेटर व्हीकल किया गया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2. महायाना के अंदर जो है मतलब गौतम बुद्ध और बोधिसत्तास की पूजा होती थी जिनसे हमें निर्वाणा होती है, जिसमें हमें निर्वाणा मिलता है. हीनयाना में गौतम बुद्धा के ये रूल्स थे कि खुद अपने अंदर झाँको और अपने एफर्ट से जो है निर्वाणा प्राप्त करो. क्लियर? सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट. क्लियर? सो दीज वर द 2 परसेप्शन दैट स्टार्टेड एट दैट टाइम. क्लियर? So the religious changes started. Next one, the growth of the Puranic Hinduism. Growth of the Puranic Hinduism. Now let's talk about the, अब ये तो था ही, और इसी टाइम पीरियड में शैविज्म और वैष्णविज्म तो पहले से ही थे, ठीक है, शिव भक्ति और विष्णु जी की. अब उसमें भी ग्रोथ होने लगी. लाइक बिल्कुल सेवियर की तरह. लाइक हमें लाइक व्हाट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट कि हमें कौन बचाएगा, हमें भगवान बचाएंगे एंड ऑल दैट. द नोशन ऑफ द सेवियर वाज इन द हिंदुइज्म एज वेल. हिंदुइज्म में भी ये नोशन था कि हमें कौन बचाएगा, हमें दुखों से पार कौन करेगा, हमें दुख हमारे कौन ख़त्म करेगा, ऑलवेज गॉड. क्लियर? लाइक दैट. तो ये नोशन भी हिंदुइज्म में भी था. बेसिकली द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, द नोशन ऑफ सेवियर वाज बोथ, किसके हाथ में था, कौन बचा सकता है हमें, दैट इज द वैष्णविज्म जो विष्णु भगवान की पूजा करने वाले होते हैं, और शैविज्म. 2 तरीके के लोग हुआ करते थे उस टाइम पे. लाइक दोज हु आर बिलीविंग इन द विष्णु एंड दोज हु आर बिलीविंग इन द शिवा, विच लेट एम्फोसिस ऑन द वर्शिप ऑफ द चूजन डेटी. और उसके अकॉर्डिंग वो जो है उनकी चूजन डेटी, लाइक विष्णु भगवान के काफ़ी सारे अवतार हुए, 10 अवतार थे, ठीक है, उनकी जो है वो पूजा किया करते, उनकी डेटीज़ की पूजा. लाइक फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा, उनकी डेटी की पूजा लोग करना स्टार्ट करते थे. और शिव भगवान के अंदर जो है, शिव जी के अंदर लिंगास की पूजा किया करते थे, और उनके जो उनका ह्यूमन रूप था उसकी भी. क्लियर? सो ये जो टाइम पीरियड है इसका परसेप्शन, किस चीज़ का परसेप्शन मीन है, द बॉन्ड बिटवीन द डेटी एंड द गॉड. मतलब भक्त, उसकी भक्ति और भगवान के बीच में एक बॉन्ड बनने लगा था. क्लियर? लेकिन इन लोगों ने बॉन्ड बना लिया था विद द हेल्प ऑफ द भक्ति. इन सच अ वर्शिप द बॉन्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल बेस्टेस्ट एग्जाम्पल लाइक द मीरा, ठीक है, अ बॉन्ड
a bhakti, a bond between Lord Krishna, idol, clear, and the Meera, just like that. In such a worship, the bond between deity and the god was visualized as a love and the devotion. क्लियर. सो इस तरीके से जो है ये टाइम पीरियड भी इसमें यहाँ पे वैष्णविज्म और शैविज्म की भी ग्रोथ होने लगी थी. सो अगर हम विष्णु भगवान की बात करते हैं, वैष्णविज्म की बात करते हैं, कल्ट डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार. तो उनके बहुत सारी जो है अलग अलग मूर्तियाँ और ये सब बनी है, किसमें अलग अलग अवतारों की माना जाता है कि उन्होंने जो है 10 अवतार लिए थे. क्लियर. और वो अवतार एज यूजुअल व्हाट वी ऑल आर नोइंग अबाउट दैट कि अवतार क्यों लेते हैं, दैट सेव द वर्ल्ड बाय द एविल फोर्सेस. तो बुराई से बचाने के लिए लोगों को या बुरे लोगों से बचाने के लिए जब जो है अवतार लिए गए थे. ठीक है. सो डिफरेंट अवतार आर पॉपुलर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एज वी ऑल आर नोइंग. रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु वॉज वन वे टू क्रिएटिंग द मोर यूनिफाइड रिलीजियस. अब अलग अलग डेटीज थी, उनको विष्णु भगवान से मतलब उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया. इन लोगों ने सारी मूर्तियाँ जो थी उनको जो है मतलब किस में यूनिफाइड रिलीजन को यूनिफाइड करने के लिए सबको किसके अवतार बताया, विष्णु के, ताकि हिंदुइज़्म जो ये जो है हिंदुइज़्म जो एक रिलीजन है वो एक यूनिफाइड रहे. ठीक है. ये नहीं कि हजारों भगवान मतलब ये इन्हीं के ही अवतार माने, मतलब ऐसे मतलब ब्रह्मा विष्णु एंड महेश लाइक दैट. तो विष्णु बाकी जितने भी गॉड्स हैं वो सब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन टॉक अबाउट दैट लॉर्ड रामा ऑल्सो दैट विष्णु के अवतार हैं. क्लियर. सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन द स्कल्पचर्स लाइक शिवा वॉज सिम्बलाइज एज लिंगा एज वेल एज इन द ह्यूमन फॉर्म. तो इसको स्कल्पचर्स में भी जो है इनको दर्शाया गया था. Such representation depict a complex set of ideas about the belief about the deities and attributes through the symbols. अब भगवान हैं तो उनको किस तरीके से इन्होंने मतलब लाइक उनको स्पेशल उनको सिम्बल्स क्या थे कि मतलब किस तरीके से हाउ डू वी अंडरस्टैंड लाइक एक वही भगवान है तो उनके कुछ बेसिक सिम्बल्स थे कि हाँ ये उनसे लिंक्ड है. वो सिम्बल थे हेड ड्रेस, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ वेपन लाइक विष्णु जी का बेसिक वेपन जो है वो चक्र. ठीक है. ऑस्पिशियस कुछ उनके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट उनसे जो है उनको डिपिक्ट किया गया था पर्टिकुलर सिम्बल्स के थ्रू. टू अंडरस्टैंड दीज इमेज इट रिक्वायर टू गेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द पुराण. और ये सब समझने के लिए वैष्णविज्म को एंड शैविज्म को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पुराण जो ब्राह्मण ने उस टाइम पे लिखा गया था. दीज कंटेन द स्टोरी ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस दैट सर्कुलेटेड फॉर द सेंचुरीज. और उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस भी आते रहे. और उस दैट अकॉर्डिंग टू दैट पुराण जो हैं वेद थे पहले, वेद के बाद अपने अकॉर्डिंग जो है ब्राह्मण ने पुराण भी लिखे. ठीक है नाउ. तो उपनिषद लिखे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द दीज स्क्रिप्चर्स. जनरली दे वर रिटन इन संस्कृत वर्ड्स. रीड अबाउट. अच्छा ये जो पुराण हुआ करते थे ये सभी संस्कृत में, ब्राह्मण ने किस में लिखे थे, संस्कृत में. अब इनको सब लोग तो वैदिक नॉलेज नहीं जानते थे तो दोज वर नॉट नोइंग अबाउट वैदिक नॉलेज बेसिकली द वुमेन और शूद्रास, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं थी. ठीक है. तो ये लोग जो है जब वो ज़ोर ज़ोर से बोला करते थे लाउडली जो है तो वो सुन के उसको अंडरस्टैंड किया करते थे. ठीक है. सो मैनी ऑफ दीज स्टोरीज वॉज पास फ्रॉम. तो यही स्टोरीज़ जो हैं वैष्णविज्म की, शैविज्म की, उनके अवतार्स की जो हम जानते हैं, रामायण एंड बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो हम जानते हैं, ये सब समय से ही जनरेशन टू जनरेशन सुनाई गई हैं और आगे से आगे जो हैं पास ऑन हुई हैं. रिफर्ड बाय द हिस्टोरियंस एज वी एज द सिंपल संस्कृत वर इन द. तो इस तरीके से स्टोरीज ने इसको जो है जब सिंपल संस्कृत में धीरे धीरे आने लगी, समझने लगी, तो हिस्टोरी ने इसी से ही कनेक्ट किया है सारे स्कल्पचर्स को दैट वर फाउंड एट द टाइम. क्लियर. सो पुरानिक स्टोरीज इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन अमंग द पीपल्स. अब ये स्टोरीज़ कैसे बनी होंगी, नई पुराणों की जो स्टोरीज़ हैं वो कैसे बनी होंगी, लाइक प्रीस्ट हैं, मर्चेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, आपस में बातचीत की, इंटरेक्शन किया है, एक जगह से दूसरी जगह घूमे हैं, अपने आइडियाज़ को बिलीव्स को शेयर किया, और इसी तरीके से सारी स्टोरीज़ ऑल ओवर सब कंटिनेंट में या बियॉन्ड भी जो है फैली होंगी. क्लियर. जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इज एन इम्पोर्ट ऑफ मथुरा रीजन के हैं बेसिकली, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है उनको जाना जाता है. तो दैट इज़ द इस तरीके से वो फैली होगी स्टोरीज. सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन. सो पहला हमने क्या पढ़ा है जो है इससे पहले जो है वी डिड महायाना एंड हीनयाना एंड आफ्टर दैट किस तरीके से बाकी अदर ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशंस भी थे. अब बात करते हैं बिल्डिंग्स की. तो उस टाइम पे लाइक कृष्णा भगवान की हमने बात की है, वैष्णविज्म की बात की है, शैविज्म वी टॉक्ड अबाउट एंड डिफरेंट अवतार्स वी टॉक्ड अबाउट. सो एट दैट टाइम लाइक
those we are knowing about that nowadays, like the big temples and infrastructure is there. At that time there was not like that. This was not like that in the starting time. Like small things, small shrine was there. So with the sculpture टेकिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म, लाइक सांची, सांची भी बिल्कुल छोटा था, बाद में मैंने आपको बताया कि सांची के चारों तरफ धीरे धीरे जो इसको इलेबोरेट किया गया, उसको इतना ब्यूटीफुल बनाया गया. टेम्पल्स वर ऑल्सो बिगेन टू, सांची की तरह टेम्पल्स भी धीरे धीरे बिल्ड होने लगे. नाउ ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने शायद मे बी प्रीवियसली इन द सेवन्थ क्लास में भी आपने सुने होंगे, चैप्टर्स आए हुए हैं. बट स्टिल द अर्ली टेम्पल्स एज वेल एज द स्क्वायर, जहाँ पे जो है डेटी रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह. ठीक है. आफ्टर दैट उसके ऊपर जो बड़ा सा टॉल स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है सेंट्रल स्टाइन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, शिखर. ओके. नाउ वॉल्स चारों तरफ डेकोरेटेड, स्कल्पचर्स और वॉल्स ये सब डेकोरेटेड जो हैं की जाया करती थी, मंदिर की जाने लगी. सो सबसे पहले गर्भगृह, श्राइन जिसमें जहाँ डेटी होती है, गर्भगृह बनने लगा. फिर धीरे धीरे ऊपर जो है शिखर बनाने लगे मंदिर को, एकदम एक लाइक पॉइंटेड जो है पिरामिडिकल स्टाइल में देने के लिए धीरे धीरे उनको डेकोरेट करने लगे स्कल्पचर्स को. आफ्टर दैट एक बड़ा सा आगे हॉल जो हम देखते हैं, बीच में गर्भगृह है, 4 पिलर्स हैं, फिर एंट्री करते हैं सीढ़ी चढ़ के, फिर एक बड़ा सा हॉल आता है, उस हॉल को गोपुरम हॉल बनने लगे, ह्यूज वॉल्स बनने लगी. फिर गेटवे जो हैं गोपुरम ही बेसिकली साउथ में यूज़ किया जाता है. ये अरेंजमेंट्स ऑफ सप्लाइंग वाटर ये सब मंदिरों में स्टार्ट होने लगा. लाइक जो आज हम जानते हैं मंदिरों की इतनी फैसिलिटीज़, लाइक साउथ के मंदिर जानते हैं हम, और उड़ीसा के या पुरी है, इतनी फैसिलिटीज़, तो ये स्टार्टेड जो है एक श्राइन से ही हुए थे. धीरे 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 विद द हेल्प ऑफ द डोनेशंस जो है ये इतने बड़े होने लगे. क्लियर. सो इसी तरीके से कुछ ऐसे भी थे जो बड़ी एक रॉक पर ही बनाए थे, और आर्टिफिशियल केव्स भी बनाई जाती थी उस टाइम. सम अर्ली टेम्पल्स वर हॉलोड आउट ऑफ ए ह्यूज रॉक, एक बड़े से रॉक के ऊपर जो है एक आर्टिफिशियल केव, एक ही रॉक से जो आर्टिफिशियल केव्स भी बनाई जाती थी. उसमें से एक केव जो है 3rd BC में अशोका ने बनवाई थी, रिनाउंसर्स के लिए जो मतलब भक्ति वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए बनाई गई थी. बिलोंग टू द आजीविका सेक्ट. आजीविका सेक्ट जो है फैटलिस्ट जो है, जिनको जो माना करते, जो आजीविका, जो मतलब खुद मटेरियलिस्टिक बिलीव नहीं देखा करते थे, जो मांग के खाते थे और वहाँ पूजा मतलब वहाँ पे जो मेडिटेशन वगैरह करते थे, उनके लिए अशोका ने एक पर्टिकुलर एक केव भी बनाई थी. सो केव टेम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट केव टेम्पल जो 8th सेंचुरी के अंदर फेमस, दैट इज द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ शिवा कार्व्ड आउट इन अ केव. एक ही केव के एक ही गुफा, एक ही पत्थर को कार्व्ड आउट करके पूरा इतना ब्यूटीफुल कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है विदाउट एडिंग अनदर स्टोन. क्लियर. इवन तक कि इसके लिए तो ये भी लिखा गया है कि ये क्या, ये मतलब लाइक इसमें जो है वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उस पर लिखा भी क्या है कि हाउ कैन आई मेड द, किस तरीके से बनाया मैंने, लाइक बनाने वाले ने भी ये सोचा है, इतना जो है ब्यूटीफुल है ये. ठीक है. सो दिस वॉज द टाइम पीरियड. सो दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द 600 BC to 600 CE. एट दैट टाइम अलग अलग ट्रेडिशंस आए, अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए, अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से लोगों ने दे डिड द स्कल्पचर, दे मेड देयर स्कल्पचर्स अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट, जो हम एज अ प्रूफ जो है हिस्टोरियंस जो है जिनको समझते हैं, पढ़ते हैं. सो द क्वेश्चन इज दैट, क्या सबको समझ में आ जाता है, लाइक उन स्कल्पचर्स को देख के डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या उनके पास सब कुछ नहीं. दीज वर द रिमेन्स, ये जो र्यून से बची हुई चीज़ें हैं वो हैं, इसमें सारी चीज़ें डिपिक्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये ग्लिम्स की तरह हैं, छोटी छोटी ग्लिम्स की तरह, झलकियों की तरह मिलती हैं, जो इन्होंने जो है सेंचुरीज से जो आ रही हैं, जो थोड़ी थोड़ी इन्होंने इकट्ठा करके जिसको एक कनेक्ट करके स्टोरी बनाने की या फिर कनेक्ट करने की कोशिश की है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि ऐसा ही हुआ होगा. लाइक नो वन इज लाइक विष्णु 10 अवतार्स, कहीं ये सब टेक्स्ट से या स्कल्पचर्स के थ्रू हुई. बाकी वी आर नॉट हैविंग एनी श्योरिटी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. विद अ ग्लिम्स ऑफ द रिच विजुअल ट्रेडिशन exist in the past, we get to know that much of been destroyed and lost over the century, that as I told you now कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो वो ग्लिम्स है कि ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉयड हो चुका है सेंचुरीज में. द रिमेन्स दैट हैड बीन प्रिजर्व्ड कन्वे अ सेंस ऑफ द विजन, और जो बचा है उससे क्या पता चलता है, आर्टिस्ट क्या सोचता है, क्या उसका विजन है, स्कल्पचर क्या बताना चाहता है, मेसन्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, हु क्रिएटेड दिस स्पेक्टेकुलर, इस तरीके का मतलब स्पॉन्टेनियस इस तरह का वर्क जो उन्होंने बनाया है, तो वो ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं किससे, रिमेन्स से. क्लियर. तो डू वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द इमेजेस वांटेड टू कन्वे, और तो सबको समझ में आ जाता है कि इमेज क्या बताना चाहती है, व्हाट द इमेजेस मीन टू पीपल अबाउट टू, क्या, आई डोंट थिंक सो. तो उसके लिए भी क्या एक इमेज को देख के, लाइक अगर आज हम वहाँ जाते हैं या किसी टेम्पल स्कल्पचर को देखते हैं, तो डिड वी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग टू सीइंग द इमेज ओनली,
No, this is our perception, because we are knowing about the few things about it, so we start connecting the things. For example कि हाँ हमने विष्णु एंड उनके अवतार के बारे में जो भी देखा है सब कुछ है, तो हम कोई पिक्चर को देख के डिबेट कर लेंगे, हाँ ये तो विष्णु जी की पिक्चर है, विष्णु जी का स्कल्पचर है, देखो इसके अंदर जो है चक्र है एंड ऑल दैट विद द हेड, मतलब उनका हेड ड्रेस को देख के, उनके बैठने के तरीके को देख के, ठीक है, ये हम डिपिक्ट करेंगे. सो बेसिकली हम जो फैमिलियर हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ा है सुना है उसको देखने की कोशिश करते हैं. वी कैन नॉट श्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर. अब फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ, अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए किस किस चीज़ों की, तो फैमिलियर फर्स्ट इज दैट टेक्निक, लाइक फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ यूरोपियन मतलब सॉरी स्कॉलर्स जो हैं जानने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर है कि यूरोपियन स्कॉलर्स नाउ दे डिपिक्ट the Gautam Buddha's picture with the help of their whatever they were knowing about that. So in the 19th century when European scholars saw this sculpture of god and goddess, they could not understand about it. मतलब इनको देख के तो डर ही गए थे, लाइक ये भौचक, क्योंकि ये क्या है, एक मैन हैविंग द मल्टीपल आर्म्स हेड्स एंड एनिमल फॉर्म्स, कोई जानवर की तरह आदमी दिख रहा है, किसी के इतने सारे सिर हैं, मल्टीपल आर्म्स हैं. दिस इज हॉरिफाइड. क्लियर. वे यूरोपियन स्कॉलर्स वर देयर, तो बट नेचुरल सी बात है उनको हॉरिफाइड होना ही था. सो दे ट्राई टू कंपेयर विद दिस स्कल्पचर विद द फैमिलियर वंस लाइक द एंशियंट. अब एंशियंट ग्रीन के स्कल्पचर्स से वो इनको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, लाइक मल्टीपल आर्म, क्योंकि एट दैट टाइम दीज मतलब इन द एंशियंट इन द ग्रीक दीज टाइप ऑफ थिंग्स वर लाइक आर्म्स हैड्स, ये सब तो था ही नहीं. तो उन्होंने जब कंपेयर करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है उनको जो मूर्ति मिली, जो उनको जो बेस्टेस्ट मानते हैं वो बुद्धा और बोधिसत्वा की, ठीक है. लेकिन दे फाउंड दीज इंडियन स्कल्पचर इन्फीरियर्स. कौन से वाले? मल्टीपल आर्म्स. ये इनको बहुत ही लोकल लेवल के इन्फीरियर मानते थे ग्रीक के अकॉर्डिंग. तो दे फाउंड दीज इमेजेस, इनमें जो इन्होंने थोड़ा ठीक माना, बेस्ट माना, वो बुद्ध और बोधिसत्वा की थी जो ग्रीक मॉडल से कनेक्टेड थी. सो दीज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट. अब इनको भी उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्वा को कैसे कनेक्ट किया? बिकॉज इंडो ग्रीक जो थे 2nd BC के अंदर जो है तक्षशिला और पेशावर या नॉर्थ वेस्ट के अंदर रूल किया उन्होंने, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मतलब उन्हें मिल ही गया. तो वहाँ पे इनको मूर्तियाँ मिली बुद्धा और बोधिसत्वा की, जिससे इन्होंने कनेक्ट किया. सो बेसिकली यूरोपियन स्कॉलर्स ने इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने कैसे की? फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ, ठीक है. जो जानते थे तो वो क्या जानते थे? एंशिएंट ग्रीक की मूर्तियों के बारे में, जिससे उन्होंने कनेक्ट किया. तो अकॉर्डिंग टू देयर उनकी मूर्ति के हिसाब से जो है उनको ये कनेक्शन थोड़ा ठीक ठाक किसमें लगा? बुद्धास एंड बोधिसत्वास के अंदर, ठीक है. जो बोला जिनको इन्होंने क्या बोला कि दे फाउंड दिस इमेजेस सिमिलर टू द ग्रीक्स के, ठीक है, उनके जैसी सी लगी, ठीक है. बाकी सब जो इमेज इनको एकदम क्या बोला कि इन्फीरियर्स हैं, ठीक है, कि बिल्कुल भी इन्फीरियर्स माना. सो यूरोपियन स्कॉलर्स considered these statues best example of Indian. These means Buddhas and Bodhisattvas. क्लियर. सो द स्कॉलर्स अडॉप्टेड हियर कौन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की? फैमिलियर टू अनफैमिलियर. बिकॉज वो जानते थे बुद्धास और बोधिसत्वास के स्टैचूज, क्योंकि वो ग्रीक सिमिलैरिटीज़ में थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रीक इंडो ग्रीक्स रह चुके, तो उन्होंने कंपेयर कर लिया. बट वॉट अबाउट द अदर्स? वॉट अबाउट द डेटीज ऑफ द अदर गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, वो इनको बहुत ही अजीबोगरीब लगी, उनको नहीं पहचान पाए, ठीक है. तो एक ये तरीका भी था. नेक्स्ट वन, इफ द टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच. अब वो उनकी बात करते हैं जहाँ पे मैच नहीं करे, तो इफ़ द टेक्स्ट एंड इमेज, कुछ तो पढ़ लिख के, कुछ तो है पढ़ी चीज़ों को मैच करते, कुछ नहीं. तो व्हाट अबाउट दोज द टेक्स्ट और इमेज जहाँ पे मैच नहीं करें? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बेसिक चीज जो तरीका है हमारा इन द सेंस हिस्टोरियंस का, व्हाट वर द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड एनी स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट. Art historians collect information from the written text to understand the sculpture. To understand Indian sculpture, they compare it with the culture like Greek sculpture, which was incomparable. उसके लिए भी उसके साथ भी कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई मेल ही नहीं है. उनका और जो है इन मूर्तियों का कोई आपस में कोई कनेक्शन इनकम्पेरेबल था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था कंपेयर करना, क्योंकि ग्रीक स्कल्पचर्स जो हैं वो इसके हिसाब से इंडियन आर्ट के हिसाब से वो कंपेयर नहीं कर सकते थे उसको, ठीक है. सो स्टडिंग द टेक्सचुअल ट्रेडिशन, तो कंपेयर किससे किया? टेक्सचुअल ट्रेडिशन. लेकिन टेक्सचुअल ट्रेडिशन इज़ ऑलवेज नॉट ईजी टू यूज़. वो भी हमेशा उसको समझना, ये नहीं है कि भाई बुक में पढ़ा है आफ्टर दैट वी कैन ईजिली कंपेयर विद द अदर, कि हम ईजिली सारी चीज़ समझ में. उसमें भी बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो द ईजी टू अंडरस्टैंड.
टेक्सचुअल ट्रेडिशन इज ऑल्सो नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, एक महाबलीपुरम में एक बड़ा सा स्टोन सरफेस है जिसके ऊपर एक सीन डिपिक्ट किया गया। उस सीन को देख के कुछ थिंकर्स ने बोला कि गंगा के जो है, रिवर गंगा जो है जब हेवन से जब जो आती है उसका एक पिक्चर है, ठीक है। इसीलिए जो है बीच में जो है ये क्लिफ्ट की तरह जो है ये रॉक के बीच में से जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला महाभारत का सीन है जहाँ पे अर्जुन जो है वहाँ पे जो तपस्या कर रहे थे आर्म्स को पाने के लिए। सो अलग अलग परसेप्शन हमेशा से रहे हैं। सो वी कैन नॉट से विद द हेल्प ऑफ ओनली थिंग्स कि हाँ हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती, हमें कुछ कुछ झलकियाँ, कुछ ग्लिम्स मिलती है जिसको एडजस्ट करके हम, इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरियंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे मेड इट अंडरस्टैंड, क्लियर। सो एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर what we have to done in this, it's just the tip of iceberg. टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब बहुत थोड़ा छोटा सा, थोड़ा बहुत जो तो ग्लिम छोटी छोटी झलकियाँ मिली हैं, दैट दे डिड। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वी आर नॉट परमानेंट रिकॉर्डेड लाइक, क्योंकि सब चीज़ें लाइक क्या हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारे जीवन में हमारी लाइफ में हो रहा है, आर वी रिकॉर्डेड? हाँ, स्टिल हेयर लाइक अगर हम बात करते हैं जब मल्टीमीडिया एंड ऑल दैट वी एवरीथिंग रिकॉर्डेड, बट स्टिल क्या पर्सनली रिकॉर्ड हो रहा है? तो उस टाइम पे तो ये ऐसा भी कुछ मल्टीमीडिया सिस्टम्स भी नहीं थे, तो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। एवरीवन ऑल्सो बिजी वॉज बिजी इन देयर शेड्यूल, सो सब कुछ नहीं रिकॉर्ड किया गया था। कुछ भी रिकॉर्डेड है जो भी, ठीक है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंग सोचा, और वो भी कोई परमानेंट रिकॉर्डेड नहीं है, उसमें भी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम महाभारत की बात करें तो कितने चेंजेस आए हैं। सो सम ऑफ दीज वर रिकॉर्डेड एंड सम ऑफ दीज वर नॉट। सो जो भी मिला, जितना भी मिला, अकॉर्डिंग टू दैट historians try to understand the sculptures, the text and everything. So this is your whole video completed, and we completed the whole chapter, and I hope you understand the whole chapter properly, clear. So now our whole ancient history completed today, clear. And in the next video we are going to do the medieval history and the new chapter. Okay. Till then, goodbye, thank you.